اب دیکھیے جو باہر کے لوگ ہیں نا وہ زیادہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں. ہاں یہ پیٹ بھرے نہیں کیا میں پیٹ بھرے سامنے ہاں سامنے سے نہیں کوئی آپ تکلیف کیا ہوتی ہے کہ جو باہر والے ہیں نا وہ لوگ بہت. آپ نے دیکھا جو گروپ میں لکھتے ہیں نسیم افتخار اور یہ طاہرہ یہ پاکستان کے ہیں اور وہ جو دوسری نسیم ہے وہ یو کے کی ہے اور وہ ایک اور بھی ہیں وہ تو بہت بڑی ملیاڑی ہے. وہ سارے میرے درس سنتی ہے اور وہ کہتی ہے میں کرتی ہوں اور پھر اسی میں سے مجلس پڑھتی ہوں. کہاں گیا آپ کا درس کا گروپ؟ اس میں مجھے ڈال دینا نہیں تو کبھی کیا ٹائم چینج ہوا تو مجھے بتا دو. ہاں ہمارا ہے نا گرامر ہوتی ہے تو یہ والی کلاس تو آپ نہیں پک کر سکو گے. 2 بجے کے بدھ کو ہے 2 بجے بدھ کو 2 بجے وہ آپ کر سکتے ہیں. وہ بالکل ایزی ہے اور بالکل شروع سے پھر آپ ان کو پک کر پائیں گے. لیکن تجوید کا تو انشاءاللہ ہو جائے گا. میں لکھتی ہوں ان کو بیچارہ چلے ابھی جس کو کرنا ہوگا نا تو وہ کر لیں گے. ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. تو ہم لوگ آ رہے تھے دجل پر. دجال نوٹ کر لیں یہ آپ کو کام آئے گا. دجال کی روح پرس ہوتے ہیں دجل. آج آپ بھی پڑھتے ہو نا مجلس ماشاء اللہ تو آپ کے لیے تو یہ تجوید اور یہ ضروری ہے. بہت ضروری ہے. یہ آپ کو ہر مجلس میں کام آئے گا. اسی لیے میں نے کوشش کی میں نے کہا کہ اگر کوشش نہیں ہوگی تو کبھی نہیں جا سکوں گی. کیونکہ یہ جو ہم چیزیں پڑھتے ہیں نا اس کے لیے ٹائم نکالیں گے. میں ابھی وہی کہہ رہی تھی میں تھوڑا سا وہ کرتی ہوں تھوڑا اس چیز میں آتی ہوں. دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں جو ہمارا دل جلتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اب دیکھیں کبھی کبھی ہم جب ہمارے پاس کوئی بھیک مانگتا ہے تو ہمارے پاس مونی ہوتا ہے تو ہم دیتے ہیں. جب ہمارے پاس مونی نہیں ہوتا تو ہم نہیں دیتے. ہم اللہ کو ٹائم بھیک میں دے رہے ہیں. آپ سمجھے نا ہم اللہ کو کوالٹی ٹائم نہیں دے رہے. اگر ہمارے پاس وقت ہوگا تو ہم کلاس لیں گے. وقت ہوگا تو ہم یہ کریں گے. نماز تو پڑھتے ہیں کیونکہ مجبوراً عادت ہو گئی ہے. نہیں پڑھے تو ڈر لگتا ہے کچھ عذاب نہ آ جائے کچھ مصیبت نہ آ جائے. لیکن اللہ کو ہم کوالٹی ٹائم کبھی نہیں دیتے. میں صحیح کہتی ہوں یا غلط؟ صحیح کہتی ہوں نا. وہ مونی ہوتے ہیں نا تو دیتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں ٹائم ملے گا تو ہم آئیں گے تو میں کہتی ہوں ابھی ٹائم نہیں ملے گا. خدا نہیں دیتا. جب کہتے ہیں نا ہاں وقت ملا تو آئیں گے تو اللہ ہم کہتے ہیں نا شیطان رکاوٹ ڈالتا ہے. سب سے پہلے اللہ رکاوٹ ڈالتا ہے. شیطان نہیں ڈالتا اللہ ڈالتا ہے. جو کہتا ہے نا میں بھیک میں وقت دوں گا. اگر مجھے کوئی کہے کہ میں تمہیں بھیک میں یہ چیز دوں گی تو میں تو منہ پہ مار دوں تو کیا اللہ منہ پہ نہیں مارے گا؟ تم چاہیے ہی نہیں تمہاری ضرورت ہی نہیں مجھے کیا. جیسے نہیں اللہ کہتے ہیں کہ ایک قدم آگے بڑھا ہاں تو میں 10 قدم آگے بڑھتا ہوں. بالکل سچ بات ہے. پہلا قدم اللہ کو ہمارا چاہیے. پہلا قدم جب ہم اللہ کو دیتے ہیں نا تو پہلا قدم خدا کو ہمارا چاہیے. بعد میں جتنے بھی قدم ہیں وہ خود ہمیں آگے بڑھا دے گا. میں وہی کہتی ہوں نا جو ہماری بڑی کلاس والے ہیں یا جو آپ لوگ ہیں ماشاء اللہ سے آپ نے محنت کی ہے. آپ کوالٹی ٹائم دے رہے ہو. اللہ کو قیمتی ٹائم دے رہے ہو. بھیک والا ٹائم نہیں. ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس اتنا ٹائم ہے. میں ابھی آپ کو بتا رہی تھی نا میں کھانا پکا کے میرے بھی بچے شوہر ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس کچھ ٹائم ہے تو میں کر رہی ہوں. مجھے بھی اپنا نیند پوری ہو مجھے بھی چاہیے کہ میں اچھے سے کھا سکوں. مجھے بھی چاہیے جب ٹیبل پہ کھانا پڑا تو میں پہلے کھا لوں. لیکن نہیں یہ صرف مجھے پتہ ہے کہ زندگی میں ہمیں پتہ ہے کہ ہماری زندگی کبھی بھی کسی بھی وقت میری زندگی اینڈ ہو سکتی ہے. تو جو مجھے موقع ملا کیوں نہ اس سے بہت طاقت سے پوری طاقت سے اس سے فائدہ حاصل کر سکوں. آپ کی تو ابھی زندگی ہے. ابھی آپ ابھی فائدہ لوگے نا تو آپ کو
بعد میں بھی کام آئے گی وہ چیز. ٹھیک ہے, چلیں ہم آتے ہیں دجلہ کی طرف. دجلہ کا مطلب ہوتا ہے دھوکا. دجلہ کی جو اصل میننگ ہوتی ہے نا وہ دھوکا, یا جیسے ہم کہتے ہیں عربوں میں دجال جیسے ہم کہتے ہیں اس کی جو اصل وہ ہوتی ہے عربوں کے اندر پہلے زمانے میں اونٹ چرا لیتے تھے لوگ. عربوں میں پہلے جیسے نہیں ہماری گاڑیاں چرائی یہاں اس زمانے میں تو گاڑیاں چوری ہو جاتی ہیں, لیکن پہلے زمانے میں علیکم السلام ورحمۃ اللہ, پہلے زمانے میں عربوں میں جو تھا طاہرہ بن ہم لوگ کر رہے ہیں, اور نسیم بن طاہرہ بن ہم لوگ کر رہے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ اور کون ہے. السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم السلام. تنویر اب آپ کے پھول رکھے ہوئے نا تو نام مجھے نظر نہیں آ رہا تھا. چلیں جی, تو عربوں کے ہم لوگ دجالہ کے بارے میں کر رہے ہیں کہ دجال کی روٹ میننگ کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پھر ہم آتے ہیں گرامر کی طرف. تو عربوں میں پہلے زمانے میں جو گاڑیاں موٹر اور یہ سب چوری ہوتے تھے, یعنی گاڑیاں موٹر تو نہیں تھے تو اونٹ ان کے چوری ہوتے تھے. تو کیا کرتے تھے, اونٹوں کو جب رات کے وقت اونٹوں کو کالا کلر کر دیتے تھے, بلیک کلر کر دیتے تھے. کیوں؟ کیونکہ رات کے اندھیرے میں وہ نظر نہ آئے. جس چیز کو اس طرح سے چھپایا جائے کہ وہ دھوکہ دے دوسروں کو, اس کو کہتے ہیں دجل. یہ اس کی جو روٹ میننگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. تو اس لیے اس وقت اس کو اس لیے یہ جو وقت ہے نا اس کو دجال کہتے ہیں. کہ دجال کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو ہمیں دھوکہ دے رہا ہے, جو اصل اوریجنل چیز کو چھپا کر, یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو حقیقت کو چھپا کر ہوتا کچھ اور دکھائی کچھ اور دیتا ہے. تو ہمارے سامنے سے دجال نے ہم انشاءاللہ ایلیزا ہم لوگ سورہ آراف کر رہے ہیں نا, تو سورہ آراف کے اندر جب میں آؤں گی نا تو اس میں ابھی آپ کو بتاؤں گی کہ ایک کوالٹی اس کی شیطان کی یہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے کہ ہمارے آنکھوں پر حقیقت کے پردے کو مٹا دیتا ہے, اور جو دھوکے کے پردے ہوتے ہیں نا وہ ظاہر کرتا ہے. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہے نا, حقیقت کو چھپا دی. اس نے ہماری روح کو ہمیں نہیں دکھانے دیا, ہمارے جو سویت ہے اس کو نہیں دکھانے دیا, ہمارے جو صبا ہے اس کو نہیں دکھایا, ہماری کوالٹیز کو نہیں دکھایا. اس نے کہا مٹی سے بنے ہو. تو آج پوری دنیا مٹی سے, بس مٹی کے پیچھے ہے. ہم لوگ کس کے پیچھے ہیں؟ مٹی کے پیچھے, کھاتے پیتے مٹی میں سے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں دجال. چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا یہ تو لفظ ہو گیا تھا دجال کا. میں انشاءاللہ جب یہ جو لفظ ہے نا دجال کا مجھے قرآن میں ملا تو میں انشاءاللہ لے کر آؤں گی. ٹھیک ہے, تو ہم لوگ اپنی گرامر میں آتے ہیں. میں نے گروپ میں بھیج دی سر گرامر. ہم کہاں تک پہنچے تھے گرامر میں؟ ہم لوگ گرامر میں کہاں لازم متعدی بنانے کا طریقہ. اس سے پہلے کہ لازم اور متعدی بنانے کا طریقہ نہیں کیا. چلے طاہرہ آپ کو بورڈ نظر آ رہا ہے؟ نسیم بین اور تنویر آپ سب کو بورڈ نظر آ رہا ہے نا؟ جی جی نظر. چلے ہم ابھی میں تھوڑا سا پیچھے سے جاتی ہوں اور اس کو ہم گہرائی سے کرتے ہیں. آپ کو تھوڑا ڈیفیکلٹ لگے گا تو ابھی آپ اپنی کوئی دعا اور تسبیح شروع کرتے ہیں. چلو یہاں پر ہم آتے ہیں. ہم نے کہا تھا کہ فعل کی جو قسمیں ہوتی ہیں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں میرے ساتھ کہ فعل لازم اور متعدی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نا. تو آج پھر سے تھوڑا سا اس کو ریپیٹ کرتی ہوں. ہمارے پاس اس کے ویڈیوز بھی موجود ہیں, لیکن ہم پھر اس میں آتے ہیں فعل کی قسمیں. فعل کی کتنی قسمیں ہوتے ہیں؟ فعل کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ فعل کی فعل ماضی, فعل امر, یہ نہیں اچھا چاہیے تو یہ فعل کے زمانے کی قسمیں ہیں. فعل کی دو قسمیں ہیں, فعل معلوم, فعل مجہول. صحیح ہم نے نہیں کیا ہے. ہاں یہ آج ہم کریں گے تنویرہ پا, آج ہم یہ کریں گے. ٹھیک ہے, تو نسیم بن یا آپ کو یا کسی کو بھی اگر مشکل لگتا ہے تو بولے, اگر مجھے میسیج میں بھی لکھ سکتے ہیں نا تو ہم کریں گے. ٹھیک ہے, میں جلدی سے اس لیے بول رہی ہوں
क्योंकि मुझे थोड़ी देर के बाद बहुत आहिस्ता बोलना है। फेल की 2 किस्में हैं, मालूम और मजहूल। अच्छा, मालूम की 3 किस्में। इन सब की फिर हम आते हैं कि फेल मालूम और फेल मजहूल के ज़माने होते हैं, ज़मान वक्त होता है। उस वक्त के हिसाब से, ज़माने के हिसाब से फेल मालूम की 3 किस्में हैं और फेल मजहूल की भी 3 किस्में हैं। 3 किस्में हो गई। पहले आते हैं पास्ट, प्रेजेंट। प्रेजेंट तो नहीं कहेंगे, पहले मुजारे कहेंगे, क्योंकि प्रेजेंट टेंस तो सिर्फ इंग्लिश में हम कह सकते हैं, लेकिन इसमें हम कहेंगे, मैं इसमें अरबी में लिखती हूँ, फेले माजी, मुजारे, अम्र। ठीक है। फिर हम आते हैं फेले मजहूल की। हमारे पास 3 किस्में हैं, उसमें भी हम कहेंगे माजी, मुजारे, अम्र। फर्क क्या है फेले मालूम और मजहूल का? तायरा बहन आप बताएंगे फेले मालूम और मजहूल का फर्क क्या है? मालूम में फाइल पता होता है कि बहुत अच्छा। फाइल कौन है, और मजहूल में मालूम नहीं होता कि फाइल कौन है। बहुत अच्छा। तो मुहद्दिस साहबा, आप मुझे थोड़ा सा एक एग्जांपल अरबी में बता सकते हैं फेले मालूम का? एक सेंटेंस, पूरा सेंटेंस। एक verb, okay? हाँ, कोई वर्ब ले आए आप। इन तीनों में से कोई भी हो, ठीक है? कोई जरूरत नहीं कि पास्ट हो, प्रेजेंट हो या अम्र हो। इन तीनों में से कोई एक मिसाल इसकी, एक मिसाल इसकी। आज हम समझेंगे जी। ज़रबहू बेस्ट हो गया। ज़रबहू, उसने मारा उसको। बहुत 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 अच्छा। फेले मालूम हो गया। okay? हमारे पास जी इसकी मिसाल। बहुत अच्छा, युफ़अलु, बहुत अच्छा। बहुत इजी। अगर हम इमाम हुसैन के लिए कहें कि करबला में, तो क्या कहेंगे जी? कुतिल हुसैन बिकरबला या युक्तलो। युक्तलो भी हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस। मुझे पता है माशाल्लाह आपको आ रहा है, पर वो सेंटेंस एकदम नहीं आ रहा है इस ज़हन में। बहुत अच्छा। चले इसको फिर से हम एक दफ़ा करते हैं। इसको आज इतना इतना गौर से देखना है, क्योंकि आपको पता है हमारे कुरान में 30% आपको ये चीज़ मिलेगी। अगर हमने 25% हर चीज़ को समझ लिया, तो हमें तो 100% समझ में आ जाएगा ना कुरान। तो अभी मैं बोलती हूँ कि फेले मालूम और फेले मजहूल। फेले मालूम और फेले मजहूल होता है। फेले मालूम में मैं इसको लिखती हूँ ताकि हमारे लिए बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं लिखती हूँ फेले मालूम में फ़ाइल पता होता है, और फेले मालूम में फ़ाइल पता होता है, मफ़ऊल को भी रख सकते हैं, दोनों रख सकते हैं, या कभी कभी ज़रूरी नहीं है। अच्छा, ज़रब मुहम्मदुन अहमदन। देखिए दुन और दन। कुल्लु फ़ाइलुन मरफ़ूउन, कुल्लु मफ़ऊलुन मंसूबुन। मारा मोहम्मद ने अहमद को, मारने वाला मोहम्मद है। अगर हम मोहम्मद को छुपा देते हैं तो इसके अंदर एक हु है जो कि बताएगा उस एक मर्द ने मारा हामिद को। ठीक है, 2 तरीके से हम लिख सकते हैं। ज़रब हामिदन, हामिदन मैंने हामिदन यू कर देती हूँ। ज़रब हामिदन, दन है ना, ये ज़बर बताती है कि हामिद को मारा है। किसने मारा है? पता है कि एक मर्द ने मारा है। ठीक है, किसी औरत ने नहीं मारा, लेकिन किसी बच्चे ने नहीं मारा, बस एक ही मर्द था जिसने हामिद को मारा। इसके अंदर अब हम जो इसका तज्जिया तरकीब करेंगे, आप नोट करें,
میں انالائز کرواتی ہوں. صبح کی بھی کلاس میں ہماری ہوتی ہے جو ہماری لائرنگ والی کلاس ہے, اس میں بھی آپ کو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ماہ رمضان کے بعد آپ کو میرے ساتھ قرآن کی سورہ کرنی اور ہر سورہ کی ہر آیت میں گرامر کرنی. تجزیہ ترکیب کا طریقہ, فعل ماضی کا پہلا صیغہ, فعل ماضی معلوم کا پہلا صیغہ, اس کے اندر ایک ہو چھپا ہے جو کہ اس کا فاعل ہے, ٹھیک ہے, اور حامدن اس کا مفعول ہو جائے گا کیونکہ زبر لی ہے. اوکے, ضرب حامدن. یا پھر دو طریقے سے ہم کر سکتے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ فعل معلوم, یہ پھر سے یہ نوٹ کرنے کی بات ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ جو بھی فعل معلوم, ہم بعد میں لکھیں اس کو تھوڑا سا, ٹھیک ہے, تھوڑا سا اس کو نوٹ کرنا ہے. ہمیں پتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاس فعل معلوم ہے اور ہم اس کو جب صرف کرتے ہیں اور اس کے اندر جو پروناؤن ہوتے ہیں وہ خود اس کے فاعل ہوتے ہیں. کلیئر؟ تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ فعل معلوم کو ہم صرف کرتے ہیں تو ہم دو طرح سے صرف کر سکتے ہیں. ایک خود اس کے اندر فاعل کے ذریعے سے, یا پھر فاعل ظاہر بھی آ جاتا ہے. تو یہ دو طریقے ہمارے پاس ہو گئے. ابھی آپ لکھ سکتے ہیں. چلے, تو ہم جب صرف کرتے ہیں آپ نوٹ کریں فعل معلوم کے اندر جو بھی پروناؤن ہوں گے وہ خود اس کے فاعل ہوں گے. ضرب میں ہو اس کا فاعل ہے, ضربا الف اس کا فاعل ہے, ضربو واو اس کا فاعل, ضربت اس کا بھی فاعل چھپا ہے. تو تا کیا ہے؟ ضربت میں جو چوتھا صیغہ ہے اس کی تا کیا ہو جائے گی؟ تا کیا ہو جائے گی؟ دیکھیے ہم کہتے ہیں ضرب, اچھا پہلا صیغہ ہے اور چوتھا صیغہ ہے ضربت. بہت اچھا. تا کچھ بھی نہیں ہے, یہ پروناؤن ہے ہی نہیں. پروناؤن تو اس کا ہی ہے جو چھپا ہوا ہے اندر. اصل میں تا جو ہے یہ جو تا ہے یہ فیمیل کی نشانی ہے. یہ بتاتی ہے کہ یہ لفظ بغیر تا کے میل ہے, بغیر تا کے میل ہے اور تا کے ساتھ فیمیل ہو جائے. ضربتا, اس کو بھی جب ہم وہ کرتے ہیں نا, اس کو بھی آپ کو نوٹ کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ بھی جب ہم تجزیہ ترکیب کرتے ہیں نا, میری کلاس میں کبھی کبھی تھوڑی سی مسٹیک ہو جاتی ہے. ضربتا میں بھی جب آپ اس کو تجزیہ ترکیب کریں گے تو آپ کیا کہو گے؟ ضرب فعل ماضی کا پانچواں صیغہ, یا آپ کہہ سکتے ہیں فعل ماضی مغائب کا پانچواں صیغہ, تا اس کا مؤنث کا, تا تانیث, الف اس کا فاعل ہے. کبھی بھی آپ نہیں کہیں گے تا اس کا فاعل ہے, ٹھیک ہے, کبھی بھی تا اس کا فاعل نہیں ہو پائے گا. کلیئر؟ چلیے, ضرب, ضربا, ضربو, ضربت, ضربتا, ضربنا. تو یہ جو نا ہے یہ اس کا فاعل ہو جائے گا. بہت اچھا. ضربتا, تا ضربتا, سوری ضربتا, اس کا فاعل کون ہوگا؟ ضربتا, ضربتا, ضربتما, ضربتم, ضربتی, ضربتما, ضربتنا, زبر تا. ٹھیک ہے, تا جو ساکن تا ہوگی نا وہ ہمارا ہو جائے گا. میں اس کو مٹاتی ہوں اور پھر مٹا دوں اس کو, ہاں اس کو مٹا دیتی ہوں. اس کو میں مٹاتی ہوں, پھر میں لکھتی ہوں, اس کو آپ نوٹ کر لیجیے گا. پھر میں آؤں گی. دیکھیں جب تک ہمیں فعل معلوم بس فعل ماضی میں دو ہوتے ہیں, فعل ماضی میں دو صرف فعل مضارع میں فعل مضارع میں زیادہ ہوتے ہیں. ابھی میں لکھتی ہوں, ابھی آپ نوٹ کر لیجیے کہاں کہاں چھپا ہوگا. ٹھیک ہے, میں بلو پین سے لکھوں گی اور گرین سے میں لکھوں گی کہ جہاں چھپا ہوا. ٹھیک ہے, ہم فعل ماضی, یہ فعل ماضی, اوکے, اس کو آپ نوٹ کریں. فعل, تین لفظ ہے نا, جب تین لفظ ہیں تو پورے ہیں ہمارے پاس. تین لفظ ہے نا, پورے ہیں. چوتھا اس میں ایڈ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا پروناؤن تو نہیں ہے ظاہر, کیونکہ پروناؤن تو چپک کے آتا ہے. تو فعل, میں پہلے سب لکھ لیتی ہوں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہاں کہاں پر چھپا ہے. فعل, آپ ساتھ میں بولتے جائیں. فعلا, فعلو, فعلت, فعلتها, فعلتا, فعلتا, فعلنا. بہت اچھا. فعلنا, پھر
मुहद्दिसा आपा फ़अलता साकिन नहीं है. ओके तो जबरदस्त से हाँ फ़अलतुमा फ़अलतुम फ़अलतुम फ़अलती फ़अलतुमा फ़अलतुन्न फ़अलतो फ़अलना. कहाँ कहाँ पर अभी आप देखें कहाँ कहाँ 3 लफ्ज़ से ज़्यादा है, कहाँ कहाँ सिर्फ 3 है. हाँ कहाँ कहाँ सिर्फ 3 है. फ़अला में फिर हम कहेंगे इसमें छुपा हुआ क्योंकि हमें प्रोनाउन ज़ाहिर नज़र ही नहीं आ रहा. ठीक है. और कहाँ होगा, और यहाँ होगा क्योंकि ये साकिन है. देखिए ताए साकिन, यहाँ कहीं पर भी ता साकिन नज़र नहीं आ रही आपको. क्लियर. यहाँ साकिन है तो ये जो ता है ये प्रोनाउन नहीं होगी, ये फाइल नहीं होगी, बल्कि ये इसका फेमिनन हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी. तो यहाँ पर हमें पता चला कि फ़ेल माज़ी में फ़कत 2 जगह ऐसी है जहाँ उसका फ़ाइल छुपा हुआ होता है. अभी हम आते हैं फ़ेल मुज़ारे की तरफ. ठीक है. ये आप नोट कर लें, जहाँ पर भी ग्रीन है वो छुपा हुआ होगा. ओके. जहाँ ग्रीन नहीं होगा वहाँ पर हमारा फ़ाइल ज़ाहिर हो जाएगा. मिटा दो. चलिए अब हम आते हैं फ़ेल मुज़ारे की तरफ. ओके. फ़ेल मुज़ारे, फ़ेल अम्र को मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि फ़ेल अम्र और फ़ेल मुज़ारे में सेम होता है. ठीक है. तो मैं टाइम को बचाते हुए क्योंकि मुझे फ़ेल मुतअद्दी और लाजिम की तरफ आना है. यफ फ़ेल मुज़ारे. ठीक है. मुज़ारे हम इसको क्या कहेंगे, मुज़ारे मालूम. यफ, अच्छा एक मज़े की बात, यफ होगा या युफ होगा, यफ होगा. अलामत फ़ेल मुज़ारे, इसको आप नोट करें. अलामत फ़ेल मुज़ारे 2 जगहों पर पेश लेती है. है ना. कौन कौन सी जगह. हाँ जब हमारा फेल रुबाई बहुत अच्छा. वो चार हर्फी का हाँ बेस्ट. और वो मज़ीद हो या मुजर्रद हो. मैं इसको यूँ लिखती हूँ. अलामते, अलामते मुज़ारे, मुज़ारे मीन्स अलिफ या ता नून. हाँ हमेशा, ऑलवेज हमेशा पेश लेंगी. ओके. सॉरी ज़बर लेंगी, ज़बर लेंगी सिवाय 2 जगहों के. कौन सी. नंबर 1 फ़ेल मजहूल, मजहूल फ़ेल मजहूल. फ़ेल मजहूल का मुज़ारे की अलामत पेश लेगी हमेशा हमेशा हमेशा. क्लियर. नंबर 2, जब हमारा, जब भी. ओके. जब भी माजी, माजी फ़ेल माजी 4 हर्फी होगा, 4 हर्फी होगा, चाहे वो रुबाई मुजर्रद हो मजीद हो. हमें ये नहीं देखना, हमने फ़कत देखना है कि माजी. जैसे जल जल फिर माजी है ना, जल 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 जल. दह दहरज, अन जल जल स. अब देखिए नज़ला की रूट वर्ड्स क्या है, अनज़ला की रूट वर्ड्स क्या है, मैंने खुद ही बता दिए. जल्लस के रूट वर्ड्स क्या होंगे एलिज़ा. जलस 3 इसके रूट वर्ड्स 3 है ना.
लेकिन फ़िल माज़ी में इसके 4 हरफी हैं, तो चाहे वो मज़ीद हो, मुजर्रद हो या रुबाई हो, जहाँ पर भी फ़िल माज़ी 4 हरफी होगा उसके मुज़ारे की अलामत हमेशा पेश होगी, अलामत मुज़ारे पेश होगी। क्लियर? ये आपको, ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ना, ये आपको बहुत ज़रूरी है याद रखना, वरना जब हम कुरान में तर्जुमा करते हैं ना, यही बड़ी बड़ी मिस्टेक्स हो जाती हैं। और एक और बड़ी, सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है कि मजहूल और मालूम मिक्स हो जाता है। एक साइन होती है जो मैं आपको बताऊंगी, एक साइन होती है जो बताती है कि ये मालूम है या मजहूल। कौन सी होगी रोशन आपा? बहुत अच्छा, बताऊं? जी 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 तारा बहन बताएं। पहले वक्त पे पेश आएगा मजहूल में। नहीं हम मुजारे की बात कर रहे हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आती हूँ मुजारे में, तो हमारे लिए और क्लियर हो जाएगा, ठीक है? ये काफ़ी है ना? अभी हम आते हैं, इसको मिटा देती हूँ। मुजारे में पेश की પછી जब બીજું શું છે जब 4 हरफी का है माजी 4 हरफी का अभी आप बाब में नहीं आए ना, हम लोग मोदी साहब हम लोग बाब में नहीं आए हैं अभी। जब हम बाब में आते हैं ना तो उस वक्त क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास 3 बाब ऐसे हैं जो फ़ेल माजी के 4 हर्फ होते हैं। 3 बाब ऐसे होते हैं जो फ़ेल माजी के, अभी अंजल और जल्ल से ये 2 बाब आ गए। बाब मुफ़ाइला एलिसा आपने पढ़ा है ना, बाब मुफ़ाइला, हाँ फ़ाइला 4 हरफी है। अंजल बाब हम कहते हैं बाब मुफ़ाइला, बाब तफ़ील, बाब फ़ाइल, 3 फिर बाब है जिनके फ़ेल माजी 4 हरफी है। तो इसके जो मुज़ारे बनेगा वो क्या बनेगा? अंजल युनज़िलो, बहुत अच्छा, सेकंड लास्ट को हम ज़ेर दे देंगे। अंजल युनज़िलो, जल्लस युजल्लिसु, फ़ाअल युफ़ाइलु। क्लियर? हाँ, तो ये हमारा हो जाता है। सिर्फ 3 बाब, सिर्फ और सिर्फ 3 बाब ऐसे हैं जहाँ पेश लेता है, बाकी कोई भी जगह पर फ़ेल मुज़ारे पेश नहीं लेगा। ये हम सब पढ़ चुके हैं, मैं सिर्फ रिपीट कर रही हूँ। मैं इसको मिटाती हूँ, क्योंकि मैं इसको जब मजहूल में आऊँगी ना तो हमारे लिए क्लियर होगा। देखिए जब तक हमें मालूम और मजहूल बिल्कुल अच्छे से नहीं आ जाएंगे, हम लाजिम और मुतअद्दी को नहीं समझ पाएंगे। जी लिसा? मजहूल माजी में पहले और आखिर में हमेशा ज़बर आता है, और मजहूल मुज़ारे में पहले पेश आता है और आखिर में ज़बर आता है। हाँ बहुत अच्छा। पर फ़ेल मजहूल का जो वज़न है ना वो फिक्स होता है। फ़ेल मालूम का, ये आप नोट कर ले, फ़ेल मालूम का जबर ज़ेर पेश आ सकता है, वो एनुल फ़ेल, ये बेस्ट आपने बात की। फ़ेल मजहूल का वज़न फिक्स, उसको हम छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते, लेकिन मुज़ारे में भी फिक्स, अम्र में भी फिक्स, हर चीज़ में फिक्स। माजी में मालूम ज़ेर में लेता है। नहीं, वज़न तो फिक्स है ना, मजहूल एक ज हुई, एक फिक्स रहता है। फिक्स होता है। मजहूल का वज़न चाहे फ़ेल मुज़ारे हो, माजी हो, अम्र फिक्स, उसको हम छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते। लेकिन मालूम का जो एनुल फ़ेल होता है उसकी हरकत चेंज हो सकती है, इसलिए तो 3 वज़न होते हैं ना, फ़अला, फ़इला, फ़उला, यफ़इलु, यफ़अलु, यफ़उलु। तो 3 वज़न सिर्फ उसकी जो एनुल फ़ेल की जो हरकत है ना, ये जो सेकंड लफ्ज़ है जिसकी हरकत है ना, इसकी वजह से ये 3 वज़न बन गए। लेकिन अब देखिए मजहूल में तो एनुल फ़ेल की हरकत फिक्स है, तो फिर इसलिए उसका एक ही वज़न, फ़ेल माजी का फ़ुएला, युफ़अलु। फिर हम इसको बाबों में भी ले जाएंगे ना तो भी सेम रहेगा, ठीक है? बाबों में भी इसका वज़न सेम रहता है, फिर वो थोड़े से उसका चेंजिंग के है कायदे, लेकिन हम इसको करेंगे। चलिए इसको मैं जल्दी से करती हूँ। यफ़इलो, मुझे आप साथ देते जाए। यफ़इलो, यफ़इलाने, यफ़इलून, बहुत अच्छा। तफ़इलो, आपने देखा यहाँ पर अभी करेंगे तफ़इलो, तफ़इलाने, बहुत अच्छा। यफ़इलना, तफ़इलो, तफ़इलाने,
तफ़इलून जी तफ़इलीन बहुत ज़बरदस्त जी जी तफेलीना तफ़इलीन बहुत अच्छा फिर तफ़इलाने फिर तफिलानी तफ़इलना तफिलना बहुत अच्छा तफ़इलना जी अब अफ़इलो इलू हाँ नफ़इलो अच्छा अभी जल्दी से हम ये इसके तफिलू जी 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 नसीब पे जी बहुत अच्छा आप बता रहे हैं तफ़इलो जी जी कंटिन्यू करेंगे इलू जी तफिलू जी जी बहुत अच्छा थोड़ी सी आवाज़ कट गई लेकिन मुझे जहाँ तक मैंने सुना तो मुझे बहुत सही लगा चले अब है ना हम इसमें से इसके प्रोनाउन निकालेंगे ये आपको ये हम सिर्फ पढ़ रहे हैं लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे कुरान की आयतों से तब हमें होगा अभी मैं आपसे एक आयत कोई ले लेंगे हम उसका तज्जिया तरकीब करेंगे ठीक है कौन सी किसने नहीं की थी आपने की थी रीज़ा आपकी रहती थी ना मोहद्दिस साहब आपकी पकड़े गए याद तो तुए ने बेचारे के आए तुम कितने मजे से बैठ तो चलिए चलिए अभी हम आते हैं इनके प्रोनाउन ठीक है इनके प्रोनाउन इनकी फाइल ढूंढनी है हमें क्योंकि फाइल खुद इनके अंदर मौजूद है तो यफ़इलो का फाइल बहुत अच्छा इसके अंदर हु बहुत जबरदस्त हु छुपा है कहाँ से पता चला कि हु छुपा है क्यों ये या क्या बता रही है हमें बहुत अच्छा बहुत जबरदस्त कि ये जो हमारे पास या ता अलिफ और नून है ये प्रोनाउन नहीं तो एक साइन है एक निशानी है कि बता रहे हैं कि ये फेले मुज़ारे है बहुत अच्छा चलिए हम साथ में करते जाते हैं ठीक है आपने देखा इसका छुपा हुआ है ठीक है यफ़इलो और फिर इसका क्या होगा प्रोनाउन बहुत जबरदस्त इसका जाहिर बेस्ट नून नहीं होगा नहीं देखिए नून जो होगा ना हमेशा इसको आप नोट करें ये इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स होती हैं हम बहुत ज़्यादा लोगों से नून इस पेश की वजह से है ठीक है ना ये नून पेश की वजह से जहाँ जिस फेल में पेश गिरता है उसके सारे नून ऑटोमेटिक गिर जाते हैं क्लियर इंशाल्लाह हम करेंगे नेक्स्ट टाइम थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता अभी तो हम कितने दिनों के बाद आए महीनों के बाद चले तो इसका हो गया हमारे पास नून नहीं कहेगी ठीक है नून पेश की जगह पर है यफ़इलूना में कौन सा होगा इसका फाइल वाओ हो जाएगा बहुत जबरदस्त तफ़इलो में बेस्ट ही छुपा हुआ है बेस्ट तफ़इलाने अलिफ तफ़इलीना सॉरी तफ़इलना बेस्ट नून बहुत अच्छा तफ़इलो में अंत अंत छुपा है बहुत बहुत खूबसूरत कहा आपने नसीबन अंत इसके अंदर अंत छुपा है फिर तफ़इलाने में अलिफ तफ़इलूना में वाओ तफ़इलीना में जी जी જ્યારે तक મને खबर ना पड़े हूँ ना आगे बढ़ी क्या छुपा है इसमें तफ़इलीना में क्या है इसका प्रोनाउन ये बेस्ट इसका या है इसके अंदर कुछ छुपा नहीं है कुछ इसके अंदर छुपा नहीं। बेचार ये हमेशा मारी जाती है चले तफ़इलाने में अलिफ बेस्ट तफ़इलना में नून अफ़इलो बहुत अच्छा जबरदस्त अना बहुत अच्छा नाहनो अच्छा अभी अभी हाँ मुझे याद ये सिर्फ ये रिवीजन हो रहा है आप सबका तो इसको आप नोट कर लें कितनी जगह
जाओगे मुहद्दिस साहब, आपने 4 कही थी, ये तो 5 हाँ, निकला। 5 है, 5 जो 5 5 है आपके जैसा नहीं क्योंकि मुझे लगता है या तो यहाँ किया था। हाँ। मैंने आजकल नहीं किया। तो आपने देखा ये हमारा हो गया फेले मालूम। अब हम आते हैं फेले, इसका पहले हम तर्जुमा कर लेते हैं ना फेले मालूम का। मैं आपको एक आयत दूं तो हम उस आयत रोशन होगा सूरह मुज़म्मिल आयत नंबर 10। इसको आप नोट कर, लास्ट में आपको इसका तजिया तरकीब करनी, इसकी ग्रामर करनी है, ठीक है। चलिए जी, सूरह मुज़म्मिल आयत नंबर 10 आप भी खोल लीजिएगा और उसका एक एक लफ्ज़ का हम उसको अपनी ज़बान में अरबी में और फारसी में कहते हैं तजिया तरकीब। ये आज हमें आयत मुझे जैसे कुरान में नहीं अभी आपको देखना है इसको, वस्बिर अला मा यक़ूलूना वहजुरहुम हजरन जमीला, ठीक है। इसके अंदर आपको ग्रामर करनी है, बहुत इजी है। चलिए यहाँ क्लियर हो गया, इसको मिटाती हूँ। अभी हम आते हैं मजहूल की तरफ, ठीक है। जब तक हमें मालूम और मजहूल समझ में नहीं आएंगे तब तक हमें मुतद्दी और लाजिम समझ में नहीं आएंगे, और जब हमें मुतद्दी और लाजिम समझ में नहीं आएंगे हम तर्जुमा नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए मेहनत होगी। अच्छा, अभी हमने जो किया, जैसे हमने किया, मिला, मैं दूं कुरान दूं, कितना खूबसूरत सूरा है मुझे लगता है 71 या 73 है। हाँ ये ले लीजिए। मुल्क के बाद आयत नंबर 10, आयत नंबर 10, ठीक है। तर्जुमा और ग्रामर। चले, जब हम इसको करते हैं ज़रब, मारा उस एक मर्द ने। अभी हम आते हैं फेले मजहूल की तरफ, ठीक है। फेले मजहूल सेम है फेले मालूम और फेले मजहूल, सर्फ करने में भी, प्रोनाउन में भी, हर चीज़ में सर्फ होते हैं, लेकिन उसका वही वज़न जो होता है वो एक ही रहता है। क्या आ जाएगा? फू इला, यूफ अलू। कभी भी रोशन आपा जी, कभी भी यूफ इलो आप कहोगे ना तो ये मजहूल नहीं मालूम हो जाएगा, और फिर किस पे चला जाएगा? बाब पे। और फिर इसका तर्जुमा मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ इसका। जैसे अभी आपने कहा एक हमारे पास लफ्ज है नज़ल। नज़ल का मतलब क्या है? नाजिल यानी उतरा एक मर्द, अंजल यानी उतर रहा है, उतारा एक मर्द, ठीक है। यंजिलो, यंजिलो, उतर रहा है एक मर्द। युनजलो, देखिए युनजिलो, उतर रहा है, उसके ऊपर किसके ऊपर? इलिजा मजहूल है। बेस्ट, उतार रहा है वो एक मर्द। अभी देखिए हमारे पास 3 है। यंजिलो, उतर रहा है एक मर्द। युनजिलो, उतार रहा है एक मर्द। नहीं अभी मैं करवाऊंगी ना प्रैक्टिस। युनजलो, इसका तर्जुमा क्या है? देखिए ये 3 है, ये मजहूल है। ये मजहूल हो गया। इसको कैसे तर्जुमा करेंगे? उतर रहा है वो एक मर्द पर, उतारा जा रहा है एक मर्द। उतारा। अभी देखिए फिर से मैं उर्द करती हूँ। नंजिलो, उतर रहा, खुद उतर रहा है एक मर्द। ये मालूम है, ये मालूम, मैं उतर रही हूँ। ओके, पता है ना उतरने वाले कौन है? मैं, हमें पता चल गया। फाइल पता है, काम करने वाला पता है। उतर रही हूँ मैं।
युनज़िलु उतार रही हूँ मैं, ये भी पता चल गया ना कि उतार कौन रहा है, मैं। अभी युनज़िलु उतारा जा रहा है उस एक मर्द को, अभी उस एक मर्द को या उतारा जा रहा है मुझको, लेकिन कौन उतार रहा है पता नहीं, बस उतारा जा रहा हूँ, उतार रहा है कौन पता नहीं। यानी मजहूल में फाइल लापता होता है, मफऊल फाइल की जगह में ले लेता है। क्लियर? नहीं हुआ क्लियर? जी एलिसा, उनका तर्जुमा क्या था? हाँ मैं एक काम करती हूँ, पहले हम एक दफ़ा मजहूल का कर लेते हैं, ठीक है? युनज़िलु उतारा जा रहा है एक मर्द। अभी देखिए एक दफ़ा मेरे लफ्ज़ों पे आप थोड़ा गौर दीजिएगा। उतारा जा रहा है एक मर्द, लेकिन आपको पता चल रहा है कि कौन उतार रहा है उसको? नहीं पता चल रहा। जहाँ पर ये पता ना चले कि करने वाला कौन है वो मजहूल होता है। ओके, काम करने वाला कौन है, सब्जेक्ट कौन है, इसका फाइल कौन है, जहाँ नहीं पता होता। कुतिल हुसैन भी करबला, कत्ल किया गया हुसैन को करबला में, किसने कत्ल किया पता नहीं है। तो जहाँ पर भी करने वाला, काम करने वाला लापता होता है वो मजहूल होता है, जहाँ पर भी काम करने वाला का पता होता है वो मालूम होता है। क्लियर? यंजिलो से उतार रहे हैं, ऐसे यंजिलो उतर रहा है, खुद उतर रहा है। हम एक चीज़ एक चीज़ आप नोट करें एलिजा, इसको तो मैं बाप पे ले गई ना समझाने के लिए। देखिए बाब इफ़ाल का मतलब क्या होता है? काम करवाना। एक दफ़ा मैं सिर्फ बिल्कुल आप लिखे ना, सिर्फ सुनेंगे। हाँ, एक है मैं कपड़े पहन रही हूँ, एक मैं कपड़े पहन रही हूँ, एक मैं किसी को अपने बच्चे को कपड़े पहना रही हूँ। तो मैं जब कहूँगी तो मैं कहूँगी अलबिसो, मैं पहन रही हूँ अपने कपड़े, ठीक है? अलबिसल लिबासन, मैं कपड़ों को पहन रही हूँ। लेकिन एक वक्त है कि मैं कह रही हूँ कि मैं अपने बच्चे को कपड़े पहना रही हूँ, तो मैं यही लफ्ज़ तो यूज़ नहीं करूँगी ना। पहनने और पहनाने में फ़र्क है, और जो पहना रहा है वो भी पता है कि कौन पहना रहा है ना, काम करने वाला पता है, तो मैं इसको बाप पे ले जाऊँगी। हाँ, युल, हाँ, तो यहाँ उलबिसो कर दूँगी क्योंकि 13वां सीखा है ना, तो उलबिसो मैं पहना रही हूँ, उलबिसो लिबासन बिनती, मैं अपनी बेटी को कपड़े पहना रही हूँ, तो ये हो गया ना। तो यहाँ पर जब बाप पे ये सिर्फ फ़र्क होता है करने और करवाने। किसी और को कर मैं ही रही हूँ लेकिन किसी और को कर रही हूँ। एक है मैं खुद को कर रही हूँ, मैं खुद को कर रही हूँ, किसी और को कर रही हूँ। एक है कि मुझको किया जा रहा है, पता नहीं कर कौन रहा है, किया जा, वो मजहूल हो जाएगा। क्लियर? बहुत ना सोचे। नहीं अब हाँ इंशाल्लाह आपको पता है कब आएगा? जब हम कुरान का एनालाइज करेंगे, एक एक आयत में तजिया तरकीब करेंगे। अभी जैसे हम करेंगे इसमें आपको मुझे बताना है मालूम है या मजहूल है, इसका फाइल कौन है, इसका मफूल कौन है। एक बात कहूँ तो मैं आपने वो लेसन दिया ना, मैं खूब कुरान में गोती माशाल्लाह, बधाई सिखाने 14 सिखाने चाहता वही अमुक का की सब नहीं आते, नहीं हुनाए आते। हुनाए से हुमा हाँ, हुमा होता हुमा बहुत कम है, बहुत बहुत आपने बेस्ट बात की। जो मैं तो क्या बताई नहीं आवता। नहीं सब नहीं आते, बहुत अच्छा आपने कहा। चले हम है ना, बस मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए है, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करेंगे और तर्जुमा करेंगे ना, जैसे हमने जब सूरह बकरा और ये सब की, तो उसमें हमें पता चल रहा है। एलिसा आपको पता है ना, सुबह की क्लास में भी हम मालूम और मजहूल में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, नॉर्मल है, छोटा छोटा हो जाता है, क्योंकि जब वहाँ पे जाते तो मेहनत होती है। चले जी, अभी हम आते हैं मजहूल में, और ताकि मजहूल को मैं सर्व करके ना, तो जल्दी से फिर मुझे वो करना है। ये जूम मुझे तंग कर रहा है। चले मजहूल के बाद फिर हम आते हैं मुतअद्दी और लाजिम में, क्योंकि जब तक हम मजहूल और मालूम नहीं समझेंगे तो हम मुतअद्दी और लाजिम नहीं समझेंगे। ओके, अच्छा फिर हम आते हैं मजहूल में। मैं इसको यूँ करती ज़ुरिबा या फ़ुइला करती हूँ, क्योंकि फ़अला वही आता है।
फ़अल का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा काम किया। फ़ुइला, अभी यही मुझे आपसे करवाना है। फ़ुइला, आप बोलेंगे साथ साथ मेरे। फ़ुइलू, फ़ुइलत, फ़ुइलता, फ़ुइलता, फ़ुइलना, ओ फ़ुइलना, फ़ुइलता, क्योंकि छठे सीगे के बाद हमारा लामुल फ़ेल जो है वो साकिन हो जाएगा। फ़ुइलता, फ़ुइलतुमा, फ़ुइलतुमा, फ़ुइलतुम, फ़ुइलती, बहुत अच्छा। फ़ुइलती, फ़ुइलतुमा, फ़ुइलतुन्न, फ़ुइलतो, फ़ुइलना। अच्छा, अभी मज़े की बात यहाँ शुरू होगी। इसके अंदर क्या छुपा है? हु, इसका फ़ाइल होगा। क्या होगा? मजहूल में फ़ाइल होता है। यही मुझे आपको बताना था। बहुत बहुत अच्छा आपने कहा कि अब देखिए, मालूम को जब हम सर्व करेंगे ना तो हम कहेंगे ये इसका फ़ाइल है। मजहूल का तो फ़ाइल होता ही नहीं है। हम क्या कहेंगे? मजहूल के अंदर मफूल होता है। हम यूँ कहेंगे कि इसके अंदर एक हु छुपा है जो कि इसका मफूल है। फाइल में, लेकिन हम क्या करेंगे? मैं अभी पहले एक दफ़ा आपको ना सिर्फ समझाने के लिए बोल देती हूँ। हु इसका मफूल है, अलिफ इसका मफूल है, वाव इसका मफूल है, इसके अंदर है कि ही छुपा है जो कि इसका मफूल है, अलिफ इसका मफूल है, नून इसका मफूल है, ता इसका मफूल है, तुमा इसका मफूल है, तुम इसका मफूल है, ती इसका मफूल है, तुमा इसका मफूल है, तुन्ना इसका मफूल है, तो इसका मफूल है, ना इसका मफूल है। लेकिन फाइल कहाँ है? लापता, किसी को नहीं पता। जब मजहूल आता है तो इसका मतलब है कि भली दुनिया की कितनी पुलिस लग जाए वो काम करने वाले को ढूंढ के निकाल नहीं ला सकती। ठीक है, तो यहाँ एक और चीज़, क्योंकि आपने देखा यहाँ मफूल जो है वो फाइल की जगह पर बैठा है, मफूल ही, लेकिन बैठा किसकी जगह पर है? फाइल की जगह पर। मैं थोड़ा सा लिखती हूँ ताकि हमारे लिए आसान हो जाए ये बात। देखिए, मैं यहाँ लिखती हूँ कतल। देखिए, एक चीज़ से लिखती हूँ, ठीक है? कतल, कतल अल रजुल, रजुलो, कतल अल रजुलो हुसैनन, हुसैनन, कत्ल किया एक मर्द ने हुसैन को। ठीक है ना? कतल अल रजुलो हुसैनन। अभी यहाँ पर ये मालूम हो गया, एक मर्द ने, पता है किसने मारा किसने मारा हुसैन को, क्योंकि हुसैन में इमाम हुसैन नहीं कह रही, कोई भी हुसैन हो सकता है, क्योंकि मैंने तनवीन लगा दी है, मीन्स इमाम हुसैन नहीं, कोई भी हुसैन हो सकते। मारा एक मर्द ने हुसैन को। यहाँ पर फेल पता है, मारने वाला पता है, मारा जिसको गया है उसको भी पता है, सब पता है। ये हो गया पहले मालूम। काम करने वाला मुशख्खस है, फाइल अपनी जगह पर मौजूद है, मफूल अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन एक दफ़ा मैं कहती हूँ कुतिल, कुतिल, कुतिल हुसैनो, हुसैनुन होगा, ठीक है? तो मारा गया हुसैन को। हुसैन तो अपनी जगह पर मारा जा रहा है ना, चाहे मारने वाला जाहिर हो या छुपा हुआ। क्लियर? वो तो अपनी जगह पर है। लेकिन जहाँ पर हुसैन जो है वो फाइल ख़त्म हो गया और हुसैन को हमने मफूल की जगह, सॉरी फाइल की जगह पर बिठा दिया। हुसैन ने क्या लिया? पेश लिया। हो रहा है क्लियर? नहीं हो रहा, इसको छोड़ देती हूँ, पेश को छोड़ती हूँ। लेकिन एक चीज़ आपने देखी, एक चीज़ नोट करें, यहाँ हुसैन मफूल है, यहाँ पे भी हुसैन मफूल है ना। फ़र्क क्या है?
फ़र्क क्या होगा इसमें? फ़र्क इतना है कि यहाँ फ़ाइल पता है, यहाँ फ़ाइल पता नहीं है. ओके? सब पता है. फ़ाइल लापता है. फ़र्क ये है कि यहाँ फ़ाइल पता है, यहाँ फ़ाइल लापता है. लेकिन यहाँ पर जितने भी हमने यहाँ इसके अंदर प्रोनाउन, जितने भी प्रोनाउन हैं, ये फ़ाइल नहीं है, ये मफ़ऊल है. हम अपनी ज़बान में है तो मफ़ऊल है, लेकिन क्योंकि आपने देखा ये फ़ाइल की जगह पर बैठ गए ना, फ़ाइल तो है नहीं तो वो उसकी सीट पे बैठ गया. यहाँ पर अगर कोई कुर्सी रखेंगे, ये मेरी कुर्सी है, लेकिन जब मैं नहीं होंगी तो कोई और बैठ जाएगा. कुर्सी तो मेरी ही है, लेकिन बैठा कोई और है. तो हम जहाँ पर भी मजहूल के अंदर जो प्रोनाउन होंगे और वो प्रोनाउन मफ़ऊली होंगे, लेकिन हम अपनी ज़बान से उसको बोलेंगे नाइब फ़ाइल. ठीक है? ये मफ़ऊल फ़ाइल की जगह पर बैठने की वजह से हम उसको नाइब फ़ाइल कहते हैं. ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, आपको भेज दूँगी. क्लियर? ओके. फ़ुइला, मारा गया वो एक मर्द. फ़ुइला, मारे गए दो मर्द. फ़ुइलू, सब मर्द मारे गए. फ़ुइलत, मारी गई एक औरत, यानी किसने मारा कुछ पता नहीं. फ़ुइलता, मारी गई दो औरतें. फ़ुइल, सब औरतें, मारी गई बहुत सारी औरतें. बहुत सारी औरतें. बहुत अच्छा. फ़ुइलता, बहुत अच्छा. मारे गए तुम एक मर्द. फ़ुइलतुमा, मारे गए तुम दो. फ़ुइलतुम, दो. बहुत अच्छा नसीम मारे भाई. गए बहुत सारी. हाँ, बहुत अच्छा. मारे गए तुम सब, तुम बहुत ज़्यादा लोग. फ़ुइलती, फ़ुइलतुमा, फ़ुइलतुन्ना, फ़ुइलतो, मारी गई, मारी गई. फ़ुइलना, हम सब. तो आपने देखा फ़र्क क्या? जब हम कहते फ़अला, मैंने फ़ुइल तो मुझे मारा गया. फ़अल तो मैंने मारा, है ना? एक है काम करने वाला, पता है लापता. बस इतना सा फ़र्क है. ओके? जहाँ पर भी हम मैंने आपको कहा था, जहाँ जहाँ फ़ेले माजी में प्रोनाउन छुपा हुआ होता है, मालूम में और मजहूल में भी सेम, मुज़ारे में भी सेम. 5 जगह जो हमने कही थी ना फ़ेले मुज़ारे में, मजहूल में वो छुपी होती. अगर आप कहें तो मैं लिखूं, अगर आप कहें तो नहीं, लिखने की ज़रूरत नहीं है. क्या कहते हैं आप? मैं आपका रिकॉर्ड दूंगा, हम लिख लेंगे. ठीक, लिखो. ना कोई बात नहीं, हम लिख लेंगे बात. ठीक? बेहतर. हदीस में है कि इंसान जो है वो ना नस्ता. मुझे किसी ने पूछा कि शैतान को कितनी बातें याद रह गई ना, उसको याद था कि मुझे इस तरह से इंसान के साथ कहने को. नसीम आबादी सुबह को क्लास में घूमते, मुझे याद नहीं आ रहा. तो उन्होंने कहा शैतान को कैसे याद रह गया, हमें क्यों याद नहीं रहता. इंसान निकला ही नस्ता से है. इंसान की क्वालिटी ये है कि वो भूलता है. इसकी खूबसूरत क्वालिटी में. तो हदीस में है कि 100 दफ़ा याद करो, 1000 दफ़ा नहीं, हाँ 100 दफ़ा लिखो, 1000 दफ़ा याद करो. 1000, अगर किसी को याद करना है तो 1000 बार. साइंस कहती है कि 7 दफ़ा. अगर आपको अपना जहन चेक करना है ना कि मेरी मेमोरी और मेरी याद शक्ति तेज़ है, तो 7 दफ़ा एक पिक्चर को, आप बहुत ज़्यादा फ़ोटो इकट्ठा करो, उसमें से आप एक चीज़ को 7 टाइम्स आप देखो उसको. जब आपने 7 टाइम्स देखा, एक दफ़ा देखा, फिर इग्नोर किया, फिर देखा, 7 टाइम्स देखो, और फिर आपको उसमें मिक्स कर दो, और फिर आप उसको देखो, आपको याद आ जाए ना कि ये मैंने देखा है, जिसका मतलब है कि आपकी मेमोरी तेज़ है. ये मैं बहुत प्रैक्टिस करती हूँ, अल्लाह का शुक्र है ख़राब नहीं है अभी तक. चलिए, पहले मुज़ारे. युफ, बोलते जाएंगे आप मेरे साथ. युफ़इलो, युफ़इलाने, युफ़इलूना, तुफ़इलो, तुफ़इ, बहुत अच्छा. युफ़इलना, फिर
इलो तुफ इलाने तुफ इलूना फिर तुफ एलीना तुफ इलाने तुफ इल्ना फिर जी नसीब पे हाँ उफ इलो नुफ इलो ये मैं यूं लिखती हूँ क्योंकि ये बोर्ड है ना यहाँ से नीचे से नहीं दिखता इलो नुफ इलो चलो कहाँ पर सब में मैंने जेड हाँ सब में मैंने ये दे दीजिए कि बाप पे ले गई हाँ मैं युफ अलो सॉरी मैं बाप पे ले गई सबको युफ अलो युफ अलाने युफ अलूना तुफ अलो तुफ अलाने युफ अलना तुफ अलो तुफ अलाने तुफ अलूना तुफ अलीना तुफ अलाने तुफ अलना उफ अलो बहुत अच्छा है लीजा नुफ अलो चलिए वज़न हमारा ये हो गया अभी इसके अंदर आप हमें ढूंढना है अभी हम इसके अंदर क्या ढूंढेंगे बहुत अच्छा इसका मफूल या नाइब फाइल मफूल या नाइब फाइल बेहतर है कि हम नाइब फाइल कहें ठीक है क्योंकि मफूल जब देखिए एक कॉन्सेप्ट है हमारा कि मफूल वहाँ आता है जहाँ फाइल साथ होता है इस वजह से हम जब नाइब फाइल कहेंगे तो पता चलेगा हाँ ये मजहूल की बात हो रही है तो अब हम इसको करेंगे हाँ अभी बताते जाएं इसका नाइब फाइल कहाँ कहाँ छुपा होगा पहले सीखे में क्या होगा हाँ हो दूसरे में तीसरे में चौथे में हाँ वाव और चौथे में ये पांचवे में जी पांचवे में नून होगा हाँ छठा नून यहाँ है हाँ हाँ यहाँ पर नहीं यहाँ पर छुपा हुआ कोई भी नहीं है यहाँ सब जाहिर है ठीक है हाँ सातवें में अंतर बहुत अच्छा आठवें में नौवे में दसवें में ग्यारहवें में बारहवें में तेरहवें में अना चौदहवें में नहनो और ये सब क्या हो जाएंगे मजहूल में जितने भी प्रोनाउन है वो हो जाएंगे नाइब फाइल तो ये इसमें क्यों नहीं है किसमें एक दो हाँ पाँच हो गए ना क्लियर ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास सेम मालूम और मजहूल में जहाँ जहाँ पर माजी मालूम में प्रोनाउन छुपे हुए होते हैं इसका फाइल छुपा होता है मजहूल के नाइब फाइल भी वैसे ही छुपे होते हैं और सेम मुजारे में भी अभी हम आते हैं एक आज अभी जो है वो थोड़ा मुश्किल बात है इसको आपको बहुत वो करना है ध्यान से सुनना है कौन सा लाजिम और मुताद्दी यह मालूम और मजहूल की बहस फिलहाल खत्म ओके आपने एक चीज नोट की ना ये आपको नोट करना है मालूम में फाइल होता है मजहूल में फाइल नहीं होता अभी हम आते हैं लाजिम और मुताद्दी हमारे पास कुछ ऐसे लफ्ज अभी ये लफ्ज है ये ग्रामर नहीं है लफ्ज की मीनिंग भी है लाजिम और मुताद्दी उन लफ्जों को कहा जाता है ग्रामर के हिसाब से नहीं लफ्जों की मीनिंग के हिसाब से कहा जाता है यरहमुल्लाह कि जिन लफ्जों के अंदर एक ऐसा लफ्ज होता है कि जब आप बोलते हो ना तो साथ में हमें मफऊल की ज़रूरत होती है
میں آپ کو بتاتی ہوں, ٹھیک ہے. وہ لفظ جو میں بول رہی ہوں اس میں فائل, پہلے فعل, فائل اور مفعول تینوں آ جائیں گے اور تینوں بہت خوبصورت طریقے سے فٹ آ جائیں گے. وہ ہوگا متعدی, ٹھیک ہے, وہ ہوگا متعدی. جیسے قتل, میں آج بس پتہ نہیں کہ وحشی پن سوار ہو گیا مجھ پہ. قتل ضرب, قتل رجل, قتل رجل امرأتن, اللہ نہ کرے, ایک عورت کو مارا. قتل کیا ایک مرد نے عورت کو. ایک مزے کی بات آپ نے دیکھی کہ جب میں نے کہا قتل رجل امرأتن تو میں ترجمہ کرتی ہوں, آپ نوٹ کریے گا. مارا ایک مرد نے ایک عورت کو, ترجمہ فٹ ہوا نا. پھر ضرب ابوہ طفلا, مارا اس کے باپ نے بچے کو. ترجمہ فٹ ہوا نا, کو مارا نا, کو مارا باپ نے بچے کو. فٹ ہوا نا ترجمہ. جلس کرسی ین, وہ ایک مرد بیٹھا کرسی کو. فٹ نہیں آیا پکا. ذهب مسجدن, وہ ایک مرد گیا مسجد کو. جو آئیں کر رہی ہے یہ فعل متعدی ہو گیا ہے. بیسٹ, کہ اما ساتھ میں مفعول آئے. بیسٹ. جب ہم کوئی لفظ بولتے ہیں اور اس کے ساتھ, نوٹ کریے گا, جب ہم کوئی فعل لاتے ہیں اور اس کے ساتھ فاعل بھی آتا ہے اور اس کے ساتھ مفعول لائیں اور مفعول کے ساتھ اردو زبان میں کا کی کو فٹ آ جائے, کیونکہ کا کی کو مفعول کو بیان کرتا ہے, کا کی کو فٹ آ جائے تو وہ ہوتا ہے متعدی. کیونکہ متعدی میں فعل بھی آتا ہے, فاعل. بہت اچھا. متعدی کا مطلب ہوتا ہے ادب, یعنی لمٹ کراس کرنا. متعدی یعنی فعل اور فاعل سے بڑھ کر مفعول تک آ گیا. تو جب ہم کہتے ہیں متعدی تو اس میں فعل, فاعل, مفعول تینوں آ جائیں گے. لیکن جب ہم کہتے ہیں لازم, اس میں فعل آ جاتا ہے اور فاعل. لازم, ہاں, فعل اور فاعل. لازم میں فعل اور فاعل پر بات ختم ہو جاتی ہے, مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی. پھر اگر ہمیں مفعول بنانا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم حرف جر لے کر آتے ہیں. جیسے جلس تو علل کرسی, میں کرسی پر بیٹھی, اللہ کے بغیر تو سینٹینس ادھورا. ٹھیک ہے نا. تھوڑا سے معلوم اور مجھول سے نہیں. آپ نے بہت اچھا کہا ہے لیزا, یہ اتنی یہاں گڑبڑ ہو رہی ہے. بہت اچھا. سیم کیسے ہوتا ہے, مجھول. نوٹ کریے گا, فعل معلوم میں, ابھی اس کو کرتی ہوں. فعل معلوم وہ فعل ہوتا ہے جس میں فاعل پتہ ہوتا ہے اور مفعول بھی آتا ہے. مجھول وہ فعل ہوتا ہے جس میں مفعول ہوتا ہے اور فاعل نہیں ہوتا. لازم وہ فعل ہوتا ہے جس میں فاعل ہوتا ہے, مفعول نہیں ہوتا. الٹا ہے. لازم مجھول کا الٹا ہے. ابھی یہاں ہی تو محنت شروع ہوتی ہے کہ جب ہم مجھول بناتے ہیں نا, اس کو میں تھوڑا کرتی ہوں, یہ کلیئر ہو جائے نا, پھر اس میں آتی ہوں تھوڑا سا. آج ڈیفیکلٹ بولا ہے, بس اتنا آج کر لیتے ہیں ہم. لازم مجھے خبر پڑی تو آپ نے بولا کیسے پتا ہے کہ لازم اس میں فاعل ہوتا ہے, فعل ہوتا ہے اور مفعول. اس میں صرف فعل اور مفعول پہ بات ختم. دیکھیں میں ابھی آپ کو بتا رہی تھی, کتب تو قلمن, میں نے قلم کو لکھا, میں نے پین کو لکھا. ہمارا ترجمہ بالکل غلط ہو رہا ہے. جہاں
पर भी हमारा जब हम मफूल का की को लगा कर देखते हैं, का की को और तर्जुमा हमारा गलत आ जाए ना, तो वो हमारा लाजिम होता है, वो मुतअद्दी नहीं होता। जैसे ज़रब मुहम्मदुन हामिदन, मोहम्मद ने मारा हामिद को, फिट आ गया तर्जुमा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने कहा जलस तो मैं बैठी, जलस तो मैं बैठी, बात ख़त्म। कुर्सी को तो नहीं हो सकता, कुर्सी पर होता है। ज़हब तो इलल मस्जिद होता है ना। हमें अब देखिए कुछ ऐसे हमारे पास प्रेजेंट जो होते हैं अम्र, माजी मुजारे अम्र, कुछ ऐसे लफ्ज़ होते हैं जिनके लिए हमें हुरूफ़े जर लाने पड़ते हैं और वो मजबूरन हमें लाने पड़ते हैं। कतब तो बिल कलम, कतब तो कलमन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी फेल फेल माजी हो या फेल और फाइल, जो सिर्फ फेल और फाइल, गौर करिएगा, जो फेल और फाइल पर ख़त्म हो बात वो होता है लाजिम। जिसके अंदर फाइल ना हो, जिसकी बात ख़त्म हो जाए फेल और नायब फाइल पर, वो होता है मजबूर। ये बहुत डिटेल से करने की बात है, बस इतना आप याद कर लें, ये बस इतनी आप चीज़ याद कर लें कि हमारे पास मुतअद्दी वो होता है जो फेल फाइल मफूल तीनों लेता है, ठीक है। लाजिम वो होता है जो सिर्फ फेल और फाइल लेता है। और हर्फ जर है, आपने बोला अभी। ये नेक्स्ट टाइम मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। ये तो मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही थी कि हमें मजबूरन अगर हमने मफूल लाना ही है ज़बरदस्ती, तो फिर हर्फ जर लेकर आएंगे बीच में। बग़ैर किसी हेल्पर के हम मफूल नहीं ला सकते, ठीक है। इसको आप नोट करिएगा कि जो लाजिम हमारा है उसमें हम बग़ैर हेल्पर के मफूल नहीं ला सकते। क्लियर? 4 फेल आप इसको याद कर लीजिएगा। लाजिम और मुतअद्दी का ताल्लुक मीनिंग से होता है, ओके। जब मीनिंग पता होती है तो फिर हम मफूल को बना सकते हैं ना, मफूल और फाइल और ये सब बना सकते हैं। जब मीनिंग नहीं पता होती तो हम नहीं बना सकते। तो लाजिम और मुतअद्दी का अभी हम देखें, अभी फिर से बोलती हूँ, हमारे पास, मैं अब बिल्कुल शुरू से बोल रही हूँ, ठीक है, बिल्कुल शुरू से बोल रही हूँ। हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन होती है, अल्फाज की बनावट होती है, वो बनावट हर्फ में नहीं होती, क्योंकि हमारे पास 3 होते हैं, नाउन यानी फेल, इस्म और हर्फ। हर्फ के साथ तो हम छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते, हमारे पास 2 होते हैं। फिर हम इन 2 के निकालते हैं रूट वर्ड्स, किसके? इस्म के और हर्फ फेल के। इस्म के जो रूट वर्ड्स होते हैं या होते हैं 3, या होते हैं 4, या होते हैं 5। 2 से कम नहीं होगा, 5 से ज़्यादा नहीं होगा। इसी तरीके से हमारे पास होता है फेल। फेल के जब हम रूट वर्ड्स निकालते हैं वो होते हैं 4 या 3, बस। इससे ज़्यादा नहीं होगा, इससे कम नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास सलासी है और रुबाई। तो एक किस्म ये हो गई फेल की, फेले रुबाई, फेले सलासी, ठीक है। और अब फिर हम आते हैं कि और भी हमारे पास जो लफ्ज़ों की किस्में हैं वो महमूज, मुज़ाफ, मोतल, सही, सालिम। क्लियर? उसके बाद जब हम आते हैं तो हमारे पास फेल होते हैं मालूम, फेल मालूम, फेल मजहूल, फेल लाजिम, फेल मुतअद्दी। क्लियर? ये आप किस्में फेल की और इस्म की आप बना लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इसको और इसकी डेप्थ में करेंगे। तो जल्दी से रोशनामा, मुझे याद है, नथी भूली। बिस्मिल्लाह। सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 10 हमारे पास कर रही है रोशनामा। जी जी, आपने कुछ बोले थे। हमारा है उसमें बगैर हेल्प नहीं मफूल हाँ। होता है। अगर हम फेल लाजिम जो सिर्फ फेल और फाइल पे ख़त्म होता है, और अगर हमने वहाँ पर मफूल लाना है तो बग़ैर हेल्पर के, किसी हेल्प के मदद के मफूल नहीं आ सकता, ठीक है। ये एलिज़ा, ये नेक्स्ट टाइम है ना, मैं आपको वो 3 हेल्पर बताऊंगी। 3 हेल्पर कौन से हैं जिसको हमें लाने पड़ते हैं, ठीक है। वो 3 हेल्पर मैं ले आऊँगी, ठीक है। इन 3 हेल्पर के अलावा चौथा हेल्पर नहीं होता।
चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्बिर, पहले इसकी ग्रामर, पहले इसका तर्जुमा। वस्बिर, वो इसबिर, हाँ बहुत अच्छा। कवला, यकूलून, हाँ यकूलून, यकूलून, वो लोग बोल रहे हैं। और देखिए ये दो लफ्ज आपस में मिलके बनते, मजे की यहाँ भी ये बात आती है ना। ये जो मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई है रोशन आपा, ये जो मैंने आपको इतने ज्यादा भेजे ये वही वाला है। देखिए हजर के रूट वर्ड्स क्या है? नहीं सॉरी, वहजर है ना, पहले अम्र है ना, तो इसका जो हमजा वस्ल है वो पेश लेगा या ज़ेर लेगा या ज़बर लेगा। इसका जो हम, क्योंकि मैं वाव नहीं लिखूंगी अभी, तो क्या लेगा? वाव के बगैर में लिख रही हूँ, तो हमजा इसका पेश लेगा, क्योंकि इसका एनुल फेल पेश लेता है। ओह जुर, ओह जुर, ओह जुर, खत्म, बात खत्म। प्लस एक नई चीज है, होम। तुम हिजरत करो उन लोगों से। बहुत अच्छा, बेस्ट। चलिए अभी इसकी ग्रामर। बस फिर होगा या वाव को हटाए तो कैसे बस इस भी पहले अम्र का, पहले अम्र का, हाँ मुखातिब का पहला सीखा। इसके अंदर क्या, इसका फाइल कहाँ है? इसका फाइल कहाँ है? क्या होगा मोहम्मद साहब, इसका फाइल कहाँ है? जी बस अंत है, क्योंकि तुम सबर करो आता है ना। बहुत बेस्ट हफिजर। माँ माई अल्लाह की मीनिंग बेस्ट। तीसरा सीखा फिर मुजारे का, इसका फाइल कहाँ है? बेस्ट। बेस्ट फाइल अंत। होम क्या है? प्रोनाउन तो है, लेकिन क्या होगा? कौन सा प्रोनाउन है? प्रोनाउन की 3 किस्में हैं, फाइली, मफूली, मजरूरी। प्रोनाउन मफूली, फाइल का प्रोनाउन तो अंत है जिसके अंदर छुपा हुआ है। हम दूसरा फाइल, दूसरा प्रोनाउन है जो कि मफूल है, क्योंकि इसके साथ कोई जार मजरूर नहीं है ना। चल हजरत, ज़बर ली है ना। आपने ये नहीं पढ़ा है, इसको कहते हैं मफूल मुतलक, कि आपने नहीं पढ़ा है। जब देखिए, जब एक
मुजारब के जैसा फ़ेल के जैसा ही हमारे पास एक नाउन आ जाए सेम हो और वो ज़बर ले मफूल हो तो उसको मफूल मुतलक कहते हैं और आपने नहीं पढ़ा है अभी तक ये, ठीक है। हजरन जमीला सिफत हो जाएगी, सिफत सिफत हो जाएगी, बहुत अच्छा, बेस्ट, माशाल्लाह। इसको मैं जल्दी से करती हूँ, नेक्स्ट टाइम मुझे इस तरह से चाहिए तज्जिया तरकीब, ओके। वाव वावे अत्फ है, जब हम अत्फ नहीं करेंगे तो हो जाएगा इसबिर, क्योंकि इसके एनुल फेल ने ज़ेर ली है। इसबिर ये जो है बाबे फेले अम्र का 7वां सीखा है, फेले अम्र का 7वां सीखा कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं फेले अम्र मुखातिब का पहला सीखा है, इसके अंदर अंतर छुपा हुआ है जो कि इसका फाइल है। अला माँ जो है वो जारो मजरूर हो गया, ओके। माँ जो है हमें पता है कि माँ कभी भी ज़ाहिरन ज़ेर नहीं लेती, लेकिन बातिनन इसने ज़ेर ली है, माँ बाय मौसूल हो जाएगा। और बाकी जितना भी हमारे पास जो आते सीखे इसके यक़ूलून वहजुरहुम, ये जो है इसका सिला हो जाएगा। यक़ूलून फ़ेले मुज़ारे रोशन आप मुज़ाफ महमूज़ मोतल सही सालिम, फ़ेले मुज़ारे मोतल, ठीक है, क्योंकि इसमें हरफ़ ले रहा है। फ़ेले मुज़ारे मोतल का तीसरा सीखा है, वाव इसका फ़ाइल हो जाएगा, वाव वावे अत्फ हो गया, और हुजुर जो है वो अम्र